चलिए भी very good morning to all of you. So we were doing try these at page number 110. Let us continue with that. Try these, page 110. I think I was telling you about second try these. There are two lines, L and M. There is a transversal named T. This angle is 50 degree and this is 130 degree. And with this information in mind, with having this information, we have to tell that whether these two lines L and M, they will be parallel to each other or not. ये दो लाइंस जो हैं हमारे पास L और M, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी या नहीं, this we want to tell. हमें ये बताना है that whether L and M they are parallel to each other or not. Now see, as Gaurish asked yesterday that ma'am, can we tell from the construction that lines are parallel? And I told him that when the angles are given, you have to tell this according to the angles. Now see, one angle is 50, another is 130. First of all, you have to see the angles. Second thing, you have to see, is there any relation between these two angles? कोई relation है दोनों angles के बीच में? देखें जरा. One is interior, another is exterior, and we haven't done any kind of relation where one is interior and another is exterior. या तो हमने दोनों interior के बीच में relation किया, या दोनों exterior के बीच में, या दोनों lines के ऊपर ऊपर हो, या दोनों lines के नीचे नीचे हो. We haven't done any, you can say, relation which is between one interior and another exterior, right? So what we need to do, we have to take one of the angle to be interior, which is this one is interior, this is exterior. किसी एक की हेल्प लेके हम या तो दोनों इंटीरियर कर ले या दोनों एक्सटीरियर कर ले. ठीक है, कैसे? मार्क हियर एंगल 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एंगल 1. सो राइट डाउन एंगल 1 plus 130 is equal to 180 linear pair. So angle 1 is 180 minus 130. So angle 1 is 50. Angle 1, it comes out to be 50. Right? Angle 1, it comes out to be 50. Is it okay? Now we should forget about 130. 130 को भूल जाओ. This is angle 1 and it comes out to be 50. Can anyone tell this 50 and this angle 1, they are what type of angles? कैसे angles हैं ये? Yes, Karthik. Corresponding angles. They are corresponding angles. Now you will write here. इसको angle 2 बोल दो. Angle 1 is equal to angle 2, 50 degree each. Angle 1 is equal to angle 2. In the bracket, write it 50 degree each. These are the corresponding angles. And what I told you that even if one pair of angles, they come equal, whether it is alternate interior, whether it is alternate exterior, or the corresponding angles, the line get parallel. So you write, therefore, pair of corresponding angles are equal. This implies L parallel to M. As pair of corresponding angles, it come out to be equal. So we can say that the line L, it is parallel to line M. As the corresponding angles, they are equal. So we can say that L parallel to M. Is it okay? So sometimes these kind of questions, it seems to be difficult to the students when one angle is interior, another is exterior. क्योंकि हमें इनके बीच में तो कोई रिलेशन पता ही नहीं, तो उनकी हेल्प, उनमें से किसी एक की हेल्प से आपको इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ता है. So this is what I want to convey by this question.
तो थर्ड आप अपने आप करोगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2. Exercise 5.2. First question. Question number first. One figure is given to us in which A and B are two lines. And there is one transversal. Let us name it as he hasn't named it. Let us name it as L. By this transversal, 8 angles have been formed on this line. And what is the name of these 8 angles? Angle 1, 2, 3, 4. Then angle 5, 6. Then 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These angles are there. Hanji Devang, what do you want to ask? मैम मेरी ना अब जाके ज्वाइन है, मेरी बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो फिर क्या क्या करवा दिया आपने? हाँ जी बेटा, यहीं से शुरू किया है. Only one question we have discussed. You can go to YouTube channel to see that. If is still any problem, then you can discuss tomorrow. Okay. चलिए, तो these are the 8 angles which are given to us. We have to give the answer of the certain question according to this figure. First question. If A parallel to B, state the property used in the following statement. Then angle 1 is equal to angle 5. Which property? By which property? 1 equal to 5. मैं रब कर देती हूँ वाक्यों को ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की. 1 is equal to 5. कौन से एंगल्स बन रहे हैं ये? साविया, स्पीक अप. आई कैन अंडरस्टैंड बाय योर लिप सिंक व्हाट यू वांट टू सी. बिल्कुल ठीक. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. Corresponding angles in case of parallel lines are equal. This property has been used. Corresponding angles in case of parallel lines are equal. Second part of the same question. If angle 4 is equal to angle 6, then A parallel to B. If angle 4 is equal to angle 6, let me make angle 4 and 6. इसको 1 और 5 को मैं रब कर दूं. This is angle 4 and this is angle 6. 4 equal to 6, then lines are parallel. Gorish, you can speak. I can understand your lip sync. Alternate interior angles. बिल्कुल ठीक. As if alternate interior angles are equal, then lines are parallel. This property has been used. This property has been used. If alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. मतलब कि something is given, you have to just see that due to which property this thing can happen. Next. Next, third part. Third part is if 4 plus 5 is equal to 180, then A parallel to B. मैं जरा 4 और 5 को जरा बना लूं, फिर I will ask you. 4 plus 5 180, then A parallel to B. Devang कुछ बोल रहा है. Devang, what do you want to say about 4 plus 5 is equal to 180? Vertically opposite. No. Who told you vertically? Sorry. Interior angles. Interior angles. अभी भी थोड़ा सा गलत है. तो इंटीरियर की स्पेशल काइंड है. स्पेशल काइंड ऑफ इंटीरियर. चहक, यू टेल. Co-interior angles. Co-interior angles. Here as
co-interior angles are supplementary, co के बाद थोड़ा हाइफन डाल लो, are supplementary, therefore lines are parallel. As co-interior angles are supplementary, therefore lines are parallel. ठीक है. Second question you'll do yourself. I would like to start with question number 3. Second अपने आप करोगे, थर्ड शुरू करने लगी हूं मैं. Question number 3. In the figure, we are given line P parallel to line Q, and there is given to be a transversal in which 8 angles are formed like this. Eight angles are formed like this. अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस हर बार ऐसे ऐसे और ट्रांसवर्सल ऐसे, किसी भी शेप में हो सकती हैं, पर पेपर में अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंगली बना लोगे तो कोई आपका गलत नहीं करेगा. मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट सेज कि मैम हमें ऐसे ज्यादा इजी लगता है कि मैं P और Q को ऐसे बनाऊं और ट्रांसवर्सल को ऐसे बनाऊं, और P वाली साइड लिख दूं A B C D और इधर वाली साइड लिख दूं A के ऊपर E है E F and 120. ऐसे भी हो सकता है, but in every kind of situation you should know how to deal with. If the lines are like this, तो आप इसको ऐसे देख लो, ऐसे खड़े होके देख लो, अपनी कॉपी को टिल्ट करके देख लो, बनाओ ऐसे ही, कॉपी को रोटेट कर लो. ठीक है. So there are certain questions related to this. Find the angles which are involved. So हम जो एंगल हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे सी, इट डजंट मीन दैट वी हैव लर्नड अल्फाबेट, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सो वी शुड फाइंड फर्स्टली एंगल ए टू जेड हमने सीखा हुआ है, पहले हमने ए किया है तो इसलिए पहले ए फाइंड करेंगे, नॉट नेसेसरी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी व्हिच एंगल इज गिवन टू अस. 125 इज गिवन टू अस. You see that with this, with the help of 125, which angles we can find out. जो जो एंगल आप 125 की हेल्प से फाइंड कर सकते हो आप कर लो. सबसे पहले 125 की हेल्प से 120 प्लस F 180 लीनियर पेयर फाइंड हो जाएगा. चलिए, सो F इज इक्वल टू 180 माइनस 125, so F is equal to 55. जब आपके पास F आ गया तो ये E क्या होएगा? F एंड E कैसे हैं? Vertically opposite angles. So you will write E is equal to F, vertically opposite angles. So E also 55. E also 55. F और E का चक्कर खत्म हुआ. अब दोबारा आ जाओ, अब आपके पास जो जो आता जा रहा है वो लिखते जाओ. E आया आपके पास 55, F आया 65. अब ये तीन एंगल आपके पास हो गए, इनकी हेल्प से आप जो जो फाइंड कर सकते हो कर लो. मेरा टारगेट है ए किसकी हेल्प से मेरे को इजीली फाइंड मैं कर सकती हूँ. ए अगर मैं E के साथ A का रिलेशन देखूं तो दे आर विच एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों ही एक साइड पे हैं, फर्स्ट कंडीशन, एंड मोरओवर दोनों लाइन के ऊपर ऊपर हैं. सो यू विल राइट E इज इक्वल टू सॉरी A इज इक्वल टू E, ब्रैकेट में लिख लो corresponding angles as E 55, so A is also 55. A आ गया 55. अब इधर वाली साइड आओ D. इन तीनों में से किसकी हेल्प से D इजीली फाइंड किया जा सकता है? D का कोई रिलेशन 125 के साथ है सीधा? कौन क्या है साव्य?
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिल्कुल ठीक लाइन के ऊपर ऊपर, डी बी लाइन के ऊपर, डी क्यू लाइन के ऊपर, 125 बी लाइन के ऊपर. सो यू कैन राइट हियर D is equal to 125. Same reason, corresponding angles. कोई भी रूल यूज किया जा सकता है. अब लीनियर पेयर भी हो सकते हैं, पर मेरे को लीनियर पेयर की बजाय ना जहां मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग दिख जाता है ना वो मैं यूज कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस नहीं होती. क्या सी का कोई एफ के साथ रिलेशन है? सी का एफ के साथ? कार्तिक? Yes, ma'am. Ma'am, they both are corresponding बिल्कुल angles. ठीक. C is equal to F. Same reason, corresponding angles. C is equal to F by using the same reason, corresponding angles. So F is 125, F is 65, so C is also 65. C भी आ गया. जहां कैलकुलेशंस ना करनी पड़े वो रूल यूज करो, मेरे को अच्छा लगता है. अब इन सब में से किसकी हेल्प से बी को फाइंड किया जाए कि हमें कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े? सीधा रूल लगे. बी ए की हेल्प से भी फाइंड हो सकता है, बी सी की हेल्प से भी फाइंड हो सकता है, बी डी की भी हेल्प से भी फाइंड हो सकता है. किसकी हेल्प से फाइंड करना चाहोगे? मैम डी से, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है तो वर्टिकली बिना ऑपोजिट एंगल्स हैं, सीधा आ जाएगा, कैलकुलेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यू विल राइट डी, बी इज इक्वल टू डी vertically opposite angles. So as D is 125, B is also 125. आपकी आवाज नहीं आ रही. Yes. आवाज पहले मैं आवाज मैम आ रही है. ठीक है. मैम आवाज. चलिए, let us start with fourth question. First part I am doing, fourth question. Have you noted it down? Yes, ma'am. Yes, Gaurish. Gaurish, you want to ask something? आपकी आवाज नहीं बच्चे आ रही. Your voice is not audible. अभी भी नहीं ऑडिबल. Let us start with question number 4. There is a line L, another line M, there is a line T, and there are two angles. This is 100, 110, and this is X. Find X. It is given L parallel to M. L M के पैरेलल है और इसकी इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से you need to find the value of X. Now see, again I am telling you the same thing. This is exterior, this is interior. कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो एक एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बीच में हो. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू फाइंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, चाहे वो ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसकी हेल्प से. आप इसको एंगल 1 बोलो. And now write angle 1 plus 110, 180, linear pair. So 1 is equal to 180 minus 110. 1 is equal to 70. 1 की वैल्यू 70 आ गई. अभी अपने हैंड सारे डाउन कर लो, क्योंकि आई गॉट कंफ्यूज कि आप लोगों ने कुछ पूछना है, तो फिर प्रॉब्लम होती रहती है. जब मैं कुछ पूछूंगी देन यू विल आस्क. ओके, 1 की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ गई. हाँ जी हरमीत सिंह, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम जो पिछला था C is equal to F, मैम C is equal to 55 था ना? C is equal to F. हाँ, C 55. 55. हाँ जी हरमीत, मैंने कल वाली वीडियो डाल दी सुबह आते. आप कह रहे थे ना कि आपने गलत वीडियो डाल दी, आप देख लेना. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम. चलिए. सो 170 डिग्री के इक्वल हो गया. नाउ हरमीत सिंह, स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो दिस 1 एंड X. अब मुझे X फाइंड करना है ना. कहाँ गया हरमीत सिंह? अनम्यूट करो अपने आप को. हरमीत सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. हरमीत, यू टेल दिस X and 1 they are having which relation? कौन से एंगल्स हैं ये?
मैम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नहीं जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस में होते हैं। कल पैरेलल मैम मैम कॉरस्पॉन्डिंग। क्या कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के ऊपर ऊपर होते हैं। मैम कैन आई टेल हाँ बोलो, आप बोलो बेटे। alternate interior angles? बिल्कुल ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल ठीक बताया। एक तो इंटीरियर में है, ऊपर से ऑल्टरनेट है। सो यू विल राइट x इज इक्वल टू एंगल 1 और आप लिखो एस L पैरेलल टू m, पहले ये लिखना पड़ेगा। Therefore x is equal to 1 alternate interior angles, ये शॉर्ट में होता है, और ALT डॉट ENT डॉट angles. So x is 70. Second part of the same question I am discussing. Second part. AB are the two lines and LM are the other two lines. AB are the two lines, L and M are other two lines. We are given L parallel to M. AB parallel हमें नहीं बताई हुई, उसने बट बोला है L M के parallel है, ठीक है? And this angle is given to be 100. This is given to be 80. And this is given to be x and we need to find x, हमें x find करना। अब देखो L and M पैरेलल है, AB के बारे में हमें नहीं पता कि वो पैरेलल है कि नहीं, L and M पैरेलल है। Now x फाइंड करना है, we need to find x। जैसे 80 उसने दिया हुआ है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, सीधा ही x फाइंड हो रहा है। एक मिनट, एक्स सीधा ही निकल रहा है, 80 की जरूरत ही नहीं थी। यू कैन राइट हियर L पैरेलल टू M। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको ट्रांसवर्सल लो, A इज ट्रांसवर्सल, तो व्हाट इट मींस x एंड 100 क्या बनेंगे, दोनों ही लाइन के एक साइड पे हैं पहली बात, और दोनों ही लाइन के ऊपर ऊपर है, x भी लाइन के ऊपर 100 भी लाइन के ऊपर, तो कौन से जस्मीन कौन से एंगल्स है ये, corresponding angles। बिल्कुल ठीक, in case of parallel lines corresponding angles are equal। corresponding angles, ओके। 80 वैसे दिया हुआ है, जरूरत नहीं थी उसकी कोई। यस कार्तिक। मैम आपने मुझे Yes, कर दिया। हाँ जी बोलो कार्तिक। मैम जो आपने जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था मैम, उसमें जो आपने एंगल 1 बनाया तो वो आपने 110 के नीचे बनाया और लीनियर पेयर ले लिया है। मैम हम उसकी ऑपोजिट वाली साइड पे बना सकते थे और 110 और 1 को वर्टिकली ऑपोजिट में ले सकते थे। फिर x और 1 में कौन सा रिलेशन लोगे? ओके मैम, ले सकते हैं, फिर x और 1 में भी ले सकते हैं, कौन सा, फिर कौन सा रिलेशन बनेगा x और 1 में अगर 1 को ऑपोजिट ले लेते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। हाँ बिल्कुल ठीक, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ठीक, को इंटीरियर। कार्तिक आप इतना अटेंटिवली मेरे को सुनते हो ना, मतलब साइड पे भी ले मुझे लगता है 50, अगर मैं आपको 50 टाइम को मतलब क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आप मतलब मेरे को ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू गिव मी द राइट आंसर, मतलब आई लाइक योर अटेंटिवनेस इन माय क्लास, वेरी गुड। थैंक यू मैम। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5th figure is given like this: ABC, DEF. This angle is 70 degree. And यहाँ पे G point. This is the figure. What is given to us? Angle ABC equal to 70 degree. Anything else which is given to us? In the given figure, the arms of two angles, they are forming parallel lines. Arms of two angles. Two angles are given. One is ABC and another is DEF. ABC, DEF. अब मैं अगर AB की आर्म, ABC एंगल की आर्म AB लूं, तो दिस इज पैरेलल टू विच आर्म ऑफ दिस एंगल? दिया हुआ ना, आर्म्स आर पैरेलल. इस एंगल की आर्म AB इस एंगल की इस आर्म के पैरेलल होगी. हाँ जी गौरीश, यू टेल. यस मैम, इन माय ओपिनियन डी, कि वो उसके बिल्कुल पैरेलल है. किसके पैरेलल है? दोबारा बोलना. डी मैम, डी डी एक डी एंड डी. एक पॉइंट कभी लाइन नहीं बनाता. यस मैम, डी जी के पैरेलल है. डी जी, टीजी भी कह सकते हो, पर क्योंकि हमारा पूरा एंगल ये है तो हम DE लिखेंगे. ओके मैम, डी ई. एंड मैम आई हैव अ डाउट. यस, आस्क. यस मैम, जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था मैम, जैसे कार्तिक ने बोला था कि हम लीनियर पेयर लाइक फॉर्म करके को इंटीरियर एंगल्स बना सकते हैं, तो मैम 110 क्या हम अगर बिल्कुल साथ में अगर हम बनाते हैं लीनियर पेयर के साथ ही 100 कॉरेस्पॉन्डिंग बन सकता है ना? किसी तरह से भी कर सकते हैं. ओके मैम. अभी AB जो है वो DE के पैरेलल है, तो इसका मतलब उसके रास्ते में जो DG आ रहा है उसके भी पैरेलल होगा. एग्री? पहली बात हो गई कि क्योंकि ये आर्म DE के पैरेलल है, दिस आर्म इज पैरेलल टू DG. ओके, इफ आई एम टेकिंग द सेकंड आर्म ऑफ द एंगल BC, कोई बता सकता है ये इस एंगल की कौन सी आर्म के पैरेलल होगी? BC will parallel to which arm? हाँ जी हरमीत सिंह. Yes ma'am, EF. बिल्कुल ठीक, BC is parallel to EF. सबसे पहले whatever is given to us, we have understood it and we have written it in mathematical form. That AB, arm of angle ABC, is parallel to arm of angle DEF, that is DE, and that is DG भी लिखा जा सकता है. उसके रास्ते में आने वाली लाइन के पैरेलल होगी. ठीक है, एंड BC is parallel to it. ये सबसे पहली बात है. अब हमें फाइंड क्या करना है ये देखें. We want to find first angle DGC. Angle DGC. Someone's voice is disturbing. Please mute yourself. Gorish, I think it is from your side. So DGC. Now see, this is DGC. अब अगर मैं इतनी फिगर रब कर दूं और इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे इंक्रीज कर दूं, तो आपको नहीं लग रहा? वैसे भी अगर हम AB भी अकेला लिख दें, यहाँ पे इस पूरी फिगर में कौन सी दो लाइंस पैरेलल आपको लग रही हैं? कार्तिक बोलो, आई कैन अंडरस्टैंड. बिल्कुल ठीक, AB पैरेलल टू DG अभी अभी हम करके आए हैं. और अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 70 डिग्री. किस रूल से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. बिल्कुल ठीक. देखो जरा, ये हुई पैरेलल लाइंस, ये हुई ट्रांसवर्सल. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल there are two angles which both lie below the line. So that means you will be having one is equal to 70 degree corresponding angle. Firstly you write because, therefore. अब आपके माइंड में
अब पता चला आपको कि हमने कैसे लाइंस को पैरेलल यूज किया डीजीसी फाइंड करते हुए। सेकेंड एंगल दैट वी वांट टू फाइंड इज एंगल डीईएफ। एंगल डीईएफ देखिए जरा, अब दूसरी चीज हम यूज करते हैं। हमने एक और आर्म पैरेलल यूज लिखी थी, BC पैरेलल टू EF, ये भी पैरेलल हैं, हम ऊपर कह के आए हुए हैं। हमें फाइंड करना है DEF। DEF को आप एंगल 2 बोल दो। If I say DEF is angle 2, can anyone tell me relation between angle 1 and angle 2? कोई और बेटे, वही 3-4 बच्चे हैंड रेज करते हैं। साविया, what will be the relation between 1 and 2? And their interior angle. They are Interior angles. इंटीरियर एंगल्स। बच्चे ये लाइंस है, ये दो लाइंस है, इसके अकॉर्डिंगली 1 और 2 क्या बने? Corresponding. Corresponding. These two lines are parallel. This is transversal. Same side of transversal. ऊपर of the line. Corresponding angles. So you will write. Therefore, angle 2 is equal to angle 1. Corresponding angles. Right? Now, what was angle 1? हमने क्या find किया था? 70 degree. और 2 का name जो question में है ना वही लिखो. 2 का name है DEF. This implies angle DEF is equal to 70 degree. This was what we want to find. Firstly, we use this parallel to this, finding out 1. Then we use this parallel to this, finding out 2. That means दो चीजें आपको आनी चाहिए कि एक तो एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, को इंटीरियर हैं, दूसरा उनके बीच में रिलेशन क्या है. These two things are very important to find, to understand. Am I clear about this question? Yes. Question number 6. अब हमने लाइंस को पैरेलल यूज करते हुए एंगल्स फाइंड किए. अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हम ये भी चेक कर सकते हैं एंगल्स की हेल्प से कि लाइन पैरेलल है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन we will use this concept that how with the help of the angles we can check that the lines are parallel. Let us start 6th question. Chale, we'll continue tomorrow. Bell has phone, so tomorrow we'll continue with the 6th question.